हाय एवरीवन। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। Hi, राइट। Pankaj. Good evening, everyone. गुड 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 गुड। थैंक यू। सो लेट्स वेट 1 more minute। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 or 2 minute वेट करते हैं, फिर विल स्टार्ट बिकॉज पीपल आर ज्वाइनिंग। ऑलराइट, सो लेट मी so let's start today's session। okay, so this session basically हम इसको हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करेंगे। इफ एनीवन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, मुझे just let me know, so I will try to do in English as well. Anyone Yeah. here who not Yes, yes. understand? I'm. Yeah. Okay, okay, I'm. okay, I'm. okay, okay, completely understand, no problem. All right, so we'll try to go in English, right? And in between also we'll try to discuss in Hindi a little bit. Okay, so no worry. So today is like last session we discussed about the basic principle about the security certifications. A little bit we discussed about the like next generation SASE platform, what is SASE and all, right? So we'll try to officially start a little bit basic about the Palo Alto firewall. So these all are the foundation. Whatever we are doing discussion, these all are the foundation. So I strongly recommend to all people जिनको भी एस्पिरेशन है कि मुझे सिक्योरिटी में इंजीनियर बनना है, they should all know basics. If you having the good understanding of the basics, probably you will go for the next level. But if you are lacking in a basic itself, so sometimes it's a very problematic for you. You know the advanced concept, but you don't know how to troubleshoot and how to define the basic stuff. So probably it is going to be challenging for the you, right? So I more focused when I start any of the sessions. So I more focused about the basics because I personally believe and I feel and I have done experience. Basic is very important. If your base is not strong, it is always challenging for you, right? So मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहां से मैंने छोड़ा था प्रीवियस सेशन को, राइट? कि हमने बहुत सारी जो डिस्कशन किया था प्रीवियस सेशन के बारे में कि मीन्स क्या हमारा रोड मैप है, क्या हमारा लिटिल बिट वी डिस्कस अबाउट द स्टार्टअप प्रिज्मा कोटेक्स एक्सटीआर, राइट? बट आज थोड़ा हम Excuse ऑफिशियली me. डिस्कस करेंगे, राइट? Excuse me. यस। Can we get this document? Or... Yes, Hello, sir. definitely all documents, whatever the study material I'm showing here, that all is going to be shared once we, start officially classes. Okay. So we'll share each and everything to everyone. So they will, go through that. There's no something we are going to hide. Okay. Okay. So we'll completely going to share each and everything. Okay. Okay. All right. So what I'm हेलो going to, yes, anything, anyone asking? सॉरी सर, मैं लव कुमार बोल रहा हूँ सर, रायपुर से। सर वो हाँ जी, कल लो मैं बताइए। क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था सर, तो कल का वो थोड़ा सा ये करवाते सर तो। अच्छा, कल आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए हाँ, थे तो वो कल। मेरी एक्टिविटी थी सर ऑफिस में। अच्छा, कल कल एक्चुअली क्या था लव कुमार जी, यस्टरडे हमने क्लास में कुछ डिस्कशन नहीं किया था। हमने डिस्कस किया था अबाउट द कैरियर काउंसलिंग। वी डिस्कस अबाउट द काफी हमारे पास एक्सपर्ट्स आए थे, डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो हमारे ऑलरेडी इनरोल्ड जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, वो ऑलरेडी जिन्होंने पास में हमारे साथ क्लासेस किया है या फिर मतलब हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हैं, दे ऑल कम टुगेदर। कुछ लोग नए भी आए थे, फ्रेशर्स भी आए थे। सो इट वाज मोर अबाउट द कैरियर काउंसलिंग सेशन। सो अगर आपको उसको देखना है, सो आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ना हमारे, मैं आपको देता हूँ लिंक, तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं।
It is not something you are going to miss anything. So let me share that video to you, so you'll get that information entirely. So let me share. So yesterday we have live session, ठीक है, और ये हमारी वीडियो है. So I highly recommend, जो भी एक मतलब अपनी लाइफ में किसी को आगे बढ़ना है, कुछ मतलब प्रोफेशनल करियर में ग्रो करना है, कहीं पे कोई स्ट्रक है, तो हमने बहुत सारे यूज केसेस हमने यहाँ डिस्कस किया. हमारे बहुत प्रोफेशनल थे, एक्सपर्ट्स थे, दे ऑल कम हियर एंड विल डिस्कस अ लॉट, राइट. सो आई वुड रिकमेंड एवरीवन, राइट, कि आप लोग इस वीडियो को देखो. एंड जब भी आपके पास फ्री टाइम है, थोड़ा लंबा वीडियो है, 2 घंटे का है, बट यू विल गेट समथिंग इनसाइट, राइट. ट्रस्ट मी कि आपको बहुत कुछ इसमें से मिलने वाला है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलने वाला है. सो जस्ट गो विद दैट, ओके. दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन. बाकी आप लोग की मर्जी, जैसा आप चाहो वैसा कर लो, बट दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू रिकमेंड. सो अब मैं बात कर रहा था कि लाइक वाइज, यस, so we have done a lot of discussion about that, basic fundamentals, right? So still we not completed. We have to complete in the multiple classes about the firewall basics. And once we having a very good foundation about the firewalls, then we can officially start about the firewall module, which is going to start from the module 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And it will end till the module 12. So we have total 12 module in the Palo Alto firewall, but हम बहुत ही basic से start करेंगे. In between we'll try to understand बहुत सारी चीजें. तो चलो we'll start officially, right? So as I described, right? So we are the Gwinnett, right? So in Gwinnett, we are offering different technical trainings. So if you guys are interested for anything, right? Cisco, Versa, Zscaler, Palo Alto, Cloud, Checkpoint, F5. So just contact us. We'll definitely try to help you out and we'll provide the trainings and all, right? And this is a purely Palo Alto session, right? And in this Palo Alto, we are going to cover entire Palo Alto module that is going to cover for there is two section. One is the PCNSA, that is a Palo Alto Network Certified, Palo Alto Network Certified Network Security Administrator, right? So this is a PCNSA. This is the, I can say, entry level of the certification, and the certification cost is going to be happen around, not around subject figure, might be a little bit increased, but इसका अभी तक $155 था, और यही होगा आई थिंक अभी लेटेस्ट रेट जो मेरे पास अपडेट है. तो इसका जो नेक्स्ट लेवल है सर्टिफिकेशन का, दैट इज अ PCNSE, दैट इज अ Palo Alto Network Certified Network Security Engineer. So this is the like next level of this PCNSA. So अगर आपको रियली सर्टिफिकेशन करना है तो आई वुड नॉट रिकमेंड टू गो फॉर दिस सर्टिफिकेशन, ठीक है. PCNSA के लिए आप मत जाओ, आप डायरेक्टली जाओ PCNSE के लिए जाओ, राइट. Why I am saying this? Because this module, what I am going to cover, this module is entirely going to cover both of the module, right? PCNSA and PCNSE both. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ छूटने वाला है. तो जब आपके पास फुल नॉलेज है, तो why should you not going for the PCNSE instead of the PCNSA? आपको जाना चाहिए. दिस इज माई पर्सनल व्यू, राइट. एक तो आपका यहाँ सर्टिफिकेशन कॉस्ट भी सेव होगा, और इसकी एक्चुअली मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है जितना PCNSE की डिमांड है, राइट. सो दिस इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन, बट स्टिल यू कैन टेक योर डिसीजन. बट द कोर्स कंटेंट व्हाट आई एम गोइंग टू कवर, इट इज गोइंग टू कवर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. सो बोथ ऑफ द मॉड्यूल इज गोइंग टू बी कवर in between the all entire course module whatever we are going to cover it, right. अब हम बात करते हैं, right, next. Why should we do the Palo Alto firewall? This is the main question coming in your mind, right? If you're planning to do for any firewall certifications in market, we having a lot of firewalls courses are available. We having a Checkpoint, we having a Fortinet, we having the Sophos, we having the ASA firewall. So why should we go with the Palo Alto firewall, right? So if I want to classify the Palo Alto firewall in compared to the another firewall, so you will get the significant differences between those all, right? So let me share a little bit, insight about why should you go for the Palo Alto firewall. So that's the first thing. The Palo Alto firewall is a leader for the market, right? So if you see, this is the last, I believe I have to update this one, Gartner report. So this was a 2021 reports, but still 2022 results out recently. So I'll just update it, okay? So in this Palo Alto firewall, you can see there are the 4 section here: the visionary, niche player, and the challengers and leaders.
So there is a 3 firewalls which are the belong to leaders. That's a Palo Alto firewall, Fortinet firewall, and Checkpoint firewall. You can see here, right? So they all 3 are the leaders, but among the leader, still leading the Palo Alto firewall in top. Why? Because they're having a such great feature. They're having a such great customer base. They have such great customer services. So this is the region they are leading in a market, and they are just spreading across the all the world. Every customer is adopting it. So इसकी जो रीजन्स हैं और जो लोगों का एडॉप्शन जो अपना एक तरीका है वो बहुत हाई है इन कंपेयर टू अदर फायरवॉल्स. सो दिस इज व्हाई इट्स अ लीडर. तो एक तो रीजन ये है कि मार्केट में इसका एडॉप्शन इतना ज्यादा है कि डिमांड इज वेरी हाई. सो अगेन अगर डिमांड किसी चीज की हाई है तो उसकी सर्विसेज की भी जरूरत पड़ेगी, सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी, राइट? सो वी नीड इंजीनियर्स. सो अगर आपकी किसी चीज की डिमांड है, किसी की अगर आपकी बहुत ज्यादा डिमांड है तो आपको इंजीनियर्स चाहिए होंगे, और इंजीनियर्स चाहिए होंगे तो फिर आपकी जॉब से निकालनी पड़ेगी, तो आपको सिक्योरिटी इंजीनियर ही चाहिए होंगे. सो दैट्स वाई सिक्योरिटी इंजीनियर की डिमांड अगर पोलो ऑल्टो फायरवॉल की बात करते हैं बाकी चीजों से, तो दैट्स वेरी हाई राइट नाउ, राइट? सो एक तो रीजन ये है कि बिकॉज द गार्टनर मैजिक, इट्स लाइक ग्लोबल रेटिंग कंपनी वी कैन से, और यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड को रिकॉग्नाइज करता है, एंड देन आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग दे गिव द रेटिंग्स की हु ब्रांड्स स्टैंडिंग वेयर, राइट? सो उसके बेसिस पे दे बेसिकली provide the rating and the all the portfolio according to their all parameters whatever they have, right? So एक तो रीजन ये है आपके पास कि it's like leader in the market and they having the very good market cap. So every vendors, every employee, like companies, MNC company, they are all using their firewalls. That's why they're having the high demand. Another parameter we have, right? Another parameter we have that is like, again, it's like open source is securityplanet.com. You can go and you can search. This is not something I drive. You can just go and you can search in the Google. You'll find that they have done the like compare, right? Compare between the lot of firewalls like the Checkpoint and the Palo Alto, Cisco and the Palo Alto, Fortinet and the Palo Alto. And while doing this compare between these the different vendors, it's observed many section Palo Alto is leading in compared to the other firewall. Likewise, you can see Checkpoint and the Palo Alto firewall. They both are the origin and DNA of the both firewall are the same. But still, Palo Alto is leading much more than Checkpoint firewall in many section. Likewise, you can say security performance. आप यहाँ पे security performance देखें, so it's the best and still it's a good, very good, but it's the best. So you can see Palo Alto is leading. Value for money, you can see it's still a fair, but it's the good. So still in this section also it is leading. Implementation, both are the similar because of both are the similar framework. They having the similar kind of the GUI. So implementation is good for both of them. So engineer will not going to face any challenge in the implementation and management. But support, management, implementation, they are the same. But in support, Palo Alto is the far behind, like far away than the Checkpoint firewall. You can see. So it's a very good and it's like just a fair. Cloud feature, again, Checkpoint is leading, but Palo Alto is just very good. So some section is Checkpoint is good, some section Palo Alto is good, but overall, if you compare that Palo is leading many of the section in compared to Checkpoint firewall. So similarly in the Cisco ASA, if you compare many sections, Cisco is lacking. So Cisco doesn't having a lot of market cap available in the market right now in term of the like providing the firewalls. The Palo Alto is like having the very good reputation in the market, but Cisco is still struggling. Fortinet, Checkpoint, and the Palo Alto, these three are basically I can say masterpiece, or like they having the monopoly in the firewall solution. That is a more in enterprise firewall solution in the market. So that's why people are very like interested to take services for the Palo Alto firewall, like Checkpoint firewall and the Fortinet firewall. And this is the region. And in among of these all, Palo Alto is like everyone love to work. So these two regions basically we can say Palo Alto firewall is like one of the best firewall in the market. And being an engineer, if you're planning to like start your career in the security, so that's a good time to you can just jump in the security domain with the very easy to learn firewall. One more very special thing with the Palo Alto firewall, it's not very complex. It's too easy to understand, too easy to navigate the firewall. Trust me, you will just easily understand all the section, all the tabs. There's no much complexity available in this Palo Alto firewall. Excuse me. Yes, Excuse me, please. can I- So all the firewalls will be in a GUI
mode, right? Yes. Graphical So user interface. Everything yes, is not like Cisco routers. exactly. So nowadays, all firewall is coming in the GUI. So that's why, Uh, graphical user interface, and they all are the next generation firewall. uh, So they all are the next generation firewall. So there's just still a CLI. I cannot say there is no CLI. You can't do anything for the CLI. You should know the CLI commands. You can do a lot of things from the CLI. But being a network administration, you can do, like, I can say, almost 99% jobs via the GUI. 1% task is just dependent on the CLI. That is on the rare case, like first time you're taking the console of the firewall, you're doing some kind of setting on the management interface, you're just going in the maintenance mode. Those kind of stuff you can do in the CLI, but yes, 99% job you can do via the GUI. There is no problem at all, right? So this is the graphical user interface. All right. So I hope you guys understand कि हमारी firewall की क्यों इतनी डिमांड है. And trust me, guys, every organization, if you just count 5 to 10 organization, like just take a random number of 10 companies or 10 organization, you'll find out of 10, 6 or 7 organizations are using Palo Alto firewall. This is the ratio available in the market, right? So that's why they're having the very high demand, and everyone is loved to work on the Palo Alto firewall, and they are actually paying very high for the Palo Alto firewall engineers, right? So this is about the Palo Alto firewall, right? Now, if I am going to talk what Palo Alto having a product segments available in the market, right? So in Palo Alto firewall, in Palo Alto network portfolio, basically there is 3 segments available in the market, right? So the first segment is a Strata PS Reach, the second was the Prisma Access, and third is the Cortex XDR. So being an engineer, right, and the security engineer, if you are just planning to start your career in the Palo Alto network or Palo Alto firewall, you should know the at least product. You should know the brands, what brand having what products. So you can just debate, you can just, make some kind of the like a good, conversation with your colleagues while doing any kind of discussion regarding your products. So in this Palo Alto firewall, the Strata series Palo Alto firewall is nothing. This is just the enterprise firewall, right? So if I'm talking about the enterprise firewall, so this enterprise firewall is something we can say the physical firewall, right? So these are the physical firewall, or could be or could be VM firewall. So these are the 2 modules they have. So they are just VM series. They also come in a like production. You can use the VM series, which I'm going to use in my labs. So all labs are based on the VM. So but the feature and the exact working model is the same. ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप VM पे काम कर रहे हो तो आपको physical वाला से कुछ change हो जाएगा. No, exactly the GUI and the way of working is going to remain same. उसमें आपको चेंज नहीं होने वाला कुछ भी, राइट? यू जस्ट हैव टू बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको जब एक इंटरफेस को समझना है, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दोज इंटरफेस, आप इजीली चीजों को कर सकते हो, कोई दिक्कत की इसमें बात है नहीं, राइट? सो आपको वीएम सीरीज भी यहाँ मिलता है, एंड फिजिकल फायरवॉल भी मिलता है, इसमें सीएन सीरीज भी मिलता है, राइट? एंड पैनोरामा भी मिलता है. सो दीज ऑल आर बेसिकली आपका जितने भी फायरवॉल हैं वो सारा आप बेसिकली आप अपने नेटवर्क में लगा सकते हैं, इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जबकि आपका सारा कुछ एक ही जैसा इंटरफेस मिलेगा जो लॉगिन करोगे फायरवॉल पे. तो अगर आप यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आपको फिजिकल पे भी वही मिलेगा, वीएम पे भी वही मिलेगा, आपको कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं आने वाला है, राइट? फिर आप दूसरी बात आती है, देयर इज अनदर मॉड्यूल दैट इज नोन एज द प्रिज्मा एक्सेस, राइट? दिस इज द प्रिज्मा एक्सेस. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रिज्मा एक्सेस, so प्रिज्मा एक्सेस क्या है? So Prisma Access again a product for the Palo Alto that is for the SASE solution, secure access services. What we discussed in the last class. So if someone is very new, so just go on the YouTube and you can see the video. Last on Monday we have a live. So on Monday we just have the discussion about about the brief about the SASE and all. So these Prisma Access having a SASE solution, they're having the Prisma SD-WAN, right? And they're having also cloud native security platform. So these 3 products they have designed the SASE solution. Basically these are the for cloud and the next generation networking, next generation WAN technology, they just use it, right? And now last but not least, that is a Cortex XDR. So this is something for the monitoring, advanced monitoring, like you want to visualize how my network is performing. Based on their network performance, you want to take some action, because
इफ यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन इन योर नेटवर्क, अगर आपके नेटवर्क में कुछ भी चेंजेस करने तो आपको डेटा चाहिए, तो डेटा कैसे मिलेगा? सो दैट इज अ कोटेक्स एक्सडीआर इज गोइंग टू मॉनिटरिंग एंड लाइव रिपोर्टिंग डेटा कि आपका नेटवर्क में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हाउ इट इज बिहेविंग, इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे क्या चीजें हो रही हैं। सो दैट ऑल इज गोइंग टू हैपन इन द कोटेक्स एक्सडीआर। सो ये कोटेक्स एक्सडीआर बेसिकली इज समथिंग कि आपके अंदर आपको इंटायर नेटवर्क के जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी ट्रैफिक आप इसके थ्रू जा रहे हो, उसको पूरा एनालाइज करता है, पूरा मॉनिटर करता है, एंड देन दे गिव यू द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड रिजल्ट कि आप वहां पर जाकर आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो, उसको व्यू कर सकते हो, उसको आप अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सो यू कैन जस्ट मैनिपुलेट बाय चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशंस, राइट? सो वो कोटेक्स एक्सडीआर से आपकी चीज, जैसे आपको पता चला कि कोटेक्स एक्सडीआर में देयर इज सम काइंड ऑफ थ्रेड्स, आपके नेटवर्क में थ्रेड्स आ रहे हैं, वर्नरेबिलिटी आ रहे हैं, किस तरह का वायरस आ रहा है, तो आप कम टू नो अबाउट द कोटेक्स एक्सडीआर किस टाइम पे आया, कहाँ से आया, कौन सा एप्लीकेशन में आया, किस टाइप की फाइल थी, तो यू कैन जस्ट अप्लाई द पॉलिसी अकॉर्डिंग टू दैट, सो नेक्स्ट टाइम से उस टाइप की आप चीजों को अवॉइड कर सकते हो, यू कैन प्रोटेक्ट योर नेटवर्क। तो ये सारी चीजें भी आपकी अवेलेबल है कोटेक्स एक्सडीआर में, राइट? सो ये आपकी फायरवॉल की बेसिक जो पालो अल्टो के जो एक हमारा सर्टिफिकेशन, वी डिस्कस थ्री थिंग्स, सर्टिफिकेशन, वी डिस्कस अबाउट द व्हाई वी शुड द पालो अल्टो फायरवॉल एंड द फायरवॉल प्रोडक्ट। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, मतलब जो भी हमने 15-20 मिनट अब डिस्कस किया अभी तक, this regarding certification, Gartner Magic Report, product of the Palo Alto Firewall, or different feature of the Palo Alto Firewall compared to different vendor. Anyone having any doubt, just please feel free to ask me. तो मैं उनको re-clarify करने की कोशिश करूंगा, because I'll move to the next section again. Excuse me, I have some doubt in 8th slide. 8th slide, okay. Please tell me. On which basis they classified these things, uh, these three things, or So- these? Yeah. Okay, so on which basis? Basically, they design the product line for the different segment, right? So one segment is the enterprise, one is the cloud, one is for the monitoring. So if you want to use the security in the cloud, go for the Prisma. If you want to use the security in your office, your data center, go for the Strata. And you want to monitor either of them, you can use the Cortex XDRs. That is compatible with either of the solutions. So there are three segments, three portfolios. Okay, when it comes to the Prisma, there is only the product is virtual. Yes, this is all virtual. There is no physical appliance available in the Prisma. These all are the virtual. What about this startup EA Strata having the physical appliances is a available. physical device. Yes, I'll show you later slides after some times. Okay, what all physical devices available and in could you please one more thing on Cortex XDR? It's again a virtual environment. There is no physical device, just one of the tool. Likewise, you can see. How can I give the example? You just think about the any kind of the monitoring tool you've seen, like SolarWind, right? SolarWind give the reports, all right. So you just have to access the SolarWind. Similarly, it's just integrated with all firewalls. You just have to access their portals, and you'll find the very on which scenario we need to use any scenario. You just have to pay the license, and your firewalls or Prisma Access is going to integrate with this Cortex XDR. You just have to take the license. You have to pay to Palo Alto Firewall to get this visibility. This is provide the inside visibility of your network. Okay. Thanks. Any other question, guys? Anyone having anything in your mind you want to ask me? सर इसको थोड़ा सा कुछ हिंदी में समझाते क्या सर? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल हिंदी में समझाते हैं। इंग्लिश वाले आईफोन से थे, चले गए क्या हैं अभी? आई थिंक चलो ठीक है, बात है, मैं हिंदी में समझाता हूँ। लब तो मैं बता रहा था कि फायरवॉल के जो ना 3 प्रोडक्ट्स हैं, जो पालो अल्टो फायरवॉल के 3 सेगमेंट है जिसने प्रोडक्ट डिजाइन किया है। एक है स्ट्राटा, एक है प्रिज्मा, एक है कोटेक्स एक्सडीआर, ठीक है? तो इन तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। इसमें आपको फिजिकल एंड वर्चुअल फायरवॉल मिलते हैं जो आपकी कंपनी में लगते हैं, राइट? सो आपकी कंपनी, जैसे मैं बोलता हूँ कि फिजिकल ऑफिस है, कोई डेटा सेंटर है, वहां पे आप लगा सकते हो, कोई ब्रांच ऑफिस है वहां लगा सकते हो। लेकिन प्रिज्मा जो एक्सेस है, इट्स फॉर द क्लाउड सोल्यूशन। ये आपका प्योर क्लाउड सोल्यूशन है। इस पे आप बेसिकली क्या करते हो कि अगर क्लाउड सिक्योरिटी चाहिए तो आप इसके लिए प्रिज्मा एक्सेस यूज कर सकते हो। इसमें कोई वर्चुअल सारा कुछ वर्चुअल होता है, इसमें कोई फिजिकल आपके लिए अप्लायंस नहीं होता है।
राइट। इसमें आप SD-WAN भी यूज कर सकते हो, सब कुछ इसके अंदर होता है। आपके पास SASE भी होता है, फायरवॉल एज सर्विस होता है, SWG भी होता है, GTNA भी होता है, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस भी होता है इसमें। फिर कोर्टेक्स XDR एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसमें आप यूज करके बेसिकली आप अपने प्रिज्मा एक्सेस नेटवर्क, ये भी एक सिक्योरिटी का ही पूरा मॉड्यूल है, ये भी सिक्योरिटी का ही मॉड्यूल है। इन दोनों को अगर आपको किसी एक को या दोनों के एक साथ मॉनिटर करना है, सो यू कैन यूज द कोर्टेक्स XDR। इसके थ्रू आप इसको मॉनिटर कर सकते हो, आप अपनी नेटवर्क की इनसाइट विजिबिलिटी ले सकते हो कि हमारे नेटवर्क में क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। ठीक है लव जी, समझ आया? ओके जी सर, थैंक यू। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आप लोग को आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज अ फायरवॉल एंड व्हाई वी नीड अ फायरवॉल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। Before I can go, history of the Palo Alto firewall, you should know. History of the Palo Alto firewall is basically कि इसमें Palo Alto का जो origin था, that was basically come from the checkpoint, right? Because इनके जो founder है निर्जोग, he was the like already employee and engineer of the checkpoint firewall and it is screen technologies. So checkpoint में जब थे वहीं से इनको आइडिया आया है कि मैं भी अपनी कंपनी स्टैब्लिश करता हूँ, आई कैन डिजाइन द Palo Alto firewall and ही फाइनली टेक अ डिसीजन कि डिजाइन द मॉड्यूल, और वहाँ फायरवॉल उन्होंने डिजाइन किया। तो जब उन्होंने फायरवॉल डिजाइन किया, जब वहां से चेक पॉइंट उन्होंने छोड़ा तो अपना Palo Alto की कंपनी खोली, दैट इज फाउंडेड इन 2005। देखो आप लोग, सो इन्होंने लाइक कैलिफोर्निया US के अंदर इन्होंने इस कंपनी को फाउंड किया एंड वहां से अभी भी ऑपरेट हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, काफी इनके कस्टमर्स हैं। तो इट्स लाइक वेरी पॉपुलर कंपनी नाउअडेज। सो निर्जक वाज लाइक फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, और बहुत ही मतलब जब प्रोडक्ट आया था मार्केट में तो अभी भी तहलका मचा रहा है। दैट टाइम ही वाज लॉन्चेज द कंपनी। सो और प्रोडक्ट, तो इसके जो यूनिक फीचर्स थे आज भी अनबीटेबल हैं। आज भी जो यूनिक फीचर्स हैं Palo Alto के, किसी भी फायरवॉल की कंपनी से अनबीटेबल हैं। दैट्स व्हाई दोनों पीपल लव टू वर्क ऑन द Palo Alto फायरवॉल। ठीक है, सो सो ये तो हमारी हिस्ट्री हो गई लिटिल बिट। अब हम बात करते हैं कि अब मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि आपको Palo Alto, चेक पॉइंट, फोर्टिनेट, ये से सोपोज, किसी अदर फायरवॉल की, मैं बस सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि व्हाई वी नीड अ फायरवॉल, राइट। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फायरवॉल की जरूरत ही क्यों पड़ी। आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आप मुझे बताओ कि आप कंपनी में फायरवॉल क्यों लगाते हो, राइट। व्हाई यू नीड अ Palo Alto फायरवॉल, और कोई भी फायरवॉल फायरवॉल क्यों लगाते हो। तो जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा कि फायरवॉल की जरूरत क्या होती है एंड व्हाई वी नीड अ फायरवॉल, सो थोड़ा सा बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है माहौल की भाई। इस बंदे को अगर यही नहीं पता है कि फायरवॉल क्यों लगाते हैं तो व्हाई शुड आई हायर हिम। पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि फायरवॉल ही क्यों लगाएं, हम कुछ और चीज ही क्यों नहीं लगाएं। एक बड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूँ कि ये सब चीजें बहुत बिल्कुल जहन में होना चाहिए। आप लोग को एकदम बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। जब कोई पूछता है व्हाई वी नीड अ फायरवॉल एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द फायरवॉल, सो आप इसको इस तरीके से डिफाइन करो कि वो बंदा सामने वाला खुश हो जाए कि हाँ, बंदे में दम है एंड ही कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट पता है। जब भी आप कभी किसी को भी यू जस्ट ट्राई टू गिव द एनी आंसर, तो मेरा ये रिकमेंडेड तो उसको एग्जांपल से दो, राइट। कभी भी उसको डेफिनेशन तो बताओ जो बुकिश डेफिनेशन होती है। अगर मैं गूगल पे जाकर इसको पढ़ूंगा तो एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा एक डेफिनेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ना मेरा काम नहीं है कि मैं जो लिखा हुआ गूगल पे या जो बुक में लिखा हुआ बताऊं। मैं आप लोग को रियलिस्टिक वर्ल्ड में बताना चाहता हूँ कि फायरवॉल की क्या जरूरत पड़ती है, राइट। सो अगर मैं बोलता हूँ कि वाई नीड अ फायरवॉल, सो ऐसा नहीं है कि फायरवॉल सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज है कि जहां पे आपको सिक्योरिटी में यूज होती है। फायरवॉल आपके हर जगह यूज होता है। अगर आपने लैपटॉप में भी जाते हो, अगर आप टाइप करते हो फायरवॉल, तो आपको यहाँ भी फायरवॉल मिल जाएगा, जिसको डिफेंडर फायरवॉल बोलते हैं। देखो यहाँ मिल गया आपको फायरवॉल। सो ये भी फायरवॉल है जो आपकी कंप्यूटर में लगा हुआ है। ट्रस्ट मी, एवरी कंप्यूटर हैविंग दिस फायरवॉल, बट आप कभी इसको यूज नहीं करते हो। कभी भी इसको आप यूज नहीं करते हो। दिस इज ऑल्सो फायरवॉल, राइट। आप किसी डेस्कटॉप में जाओ, किसी सर्वर में जाओ, किसी लैपटॉप में जाओ, एवरीवन लाइक एवरीवेयर विल गेट द फायरवॉल्स। ठीक है, तो फायरवॉल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं बात करूं फायरवॉल को, आप इस तरह समझो, जब कोई फायरवॉल पूछे तो इसको इस वर्ड से इसको कोरिलेट करो, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी क्या करती है, कहीं भी किसी भी लेवल की सिक्योरिटी होती है, चाहे वो किस टाइप की सिक्योरिटी हो सकती है आपके, या फिर आप फिजिकल सिक्योरिटी हो सकती है आपके,
फिजिकल सिक्योरिटी क्या होती है आपकी, जैसे आपके बिल्डिंग्स के जो आपके बिल्डिंग के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकते हैं, राइट, सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकते हैं आपके आपके हाउस के, आपके कंपनीज के, आपके ऑफिसेज के, वो सारे सिक्योरिटी हैं। अगर आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, राइट, सो आपके वहाँ पे जो गेट्स होते हैं, वहाँ पे आपके जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं वो भी आपके वहाँ पे हो सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहाँ भी आपके सिक्योरिटी होते हैं, राइट। सो उनका काम क्या होता है, वो सारे सिक्योरिटी हम क्यों बोलते हैं, उनका काम ये होता है कि जब भी आप वहां पे आप लैंड करो, जब भी आप वहां पे जाओ, तो उनके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। सेट ऑफ रूल्स का मतलब कि दे हैव सम काइंड ऑफ पैरामीटर, कि उनको चेक्स करना है, वो पैरामीटर चेक करना है। अगर वो पैरामीटर चेक्स पे आप ओके होते हो, देन दे विल यू नो दे विल अलाउ टू गो इनसाइड, राइट। यही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो, मेट्रो में जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आप वहां पे पहले आपको चेक किया जाता है कि आपके पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मेट्रो या रेलवे में या एयरपोर्ट में प्रोहिबिटेड है। आपके पास ऑल अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है, पासपोर्ट्स है कि नहीं है, वीजा है कि नहीं है, अगर एयरपोर्ट पे आप जाते हो कि आप ट्रेवल करने जा रहे हो, तो वो मेक श्योर करते हैं कि आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे ऑथराइज थिंग्स हैं जो आप लगेज के साथ कैरी कर रहे हो, तभी आपको अलाउ करते हैं, वरना आपको वहीं पे डिपोर्ट कर देंगे, मतलब आपको वहीं पे आपको बैक कर देंगे या फिर आपको जाने नहीं देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। सो बेसिकली दे चेक्स कि आपकी एक एक चीज को चेक करते हैं। सिमिलर अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, कंपनी में आप वर्किंग हो, राइट, सो यू जस्ट गो इन द कंपनी। आप पहली बार नया नया कंपनी में जाते हो, तो अगर कंपनी के अंदर आपके काम करना है, अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, कंपनी ने आपको एक आईडी कार्ड नहीं बना के दे रखा है, आपके पास टैग नहीं है, तो जब भी आप जाओगे अपने गेट पे कंपनी के, तो आपके ऑफिस वाला आपको स्टॉप करेगा, जो वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल्स होंगे, दे विल स्टॉप यू कि बॉस आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अपनी आईडी बताओ, नहीं है तो अपनी पर्सनल आईडी दो। आप आपके बारे में पूछेंगे कि वाई यू वांट टू गो, कहाँ पे आप, कौन रिपोर्टिंग मैनेजर एंड देन ऑल, फिर आपको अलाउ करते हैं कि आप अंदर जा सकते हो। तो इस तरीके से आपकी जो फिजिकल सिक्योरिटी है, इस तरीके से आपकी काम करती है। सेम चीज जो है ना, फायरवॉल भी करता है, सेम चीज फायरवॉल करता है। तो ये जो मैंने जितने भी एग्जांपल दिए, वट एवर आई हैव गिवन द एग्जांपल्स, ये सारे फिजिकल सिक्योरिटी के एग्जांपल्स हैं कि आपको चेक करना, आप बाहर जाओ तो भी, अंदर जाओ तो भी, किसी बिल्डिंग में जाओ तो भी, किसी एयरपोर्ट पे जाओ तो भी, हर जगह आपको चेक किया जाता है, इन एंड आउट बोथ चीज। कि अब अगर एयरपोर्ट के अंदर से बाहर आते हो तो भी वहां पे ग्रीन चैनल पे आपको चेक किया जाता है, कस्टम वाले चेक करते हैं, अब अंदर जाते हो तो सीआईएफ वाले भी आपको चेक करते हैं, राइट। इस तरह से फायरवॉल पे भी अगर आप कुछ बाहर ट्रैफिक लेके जा रहे हो, ट्रैफिक मीन्स क्या होता है, ट्रैफिक मतलब क्या होता है कि आप अपने लैपटॉप पे बैठ के यहाँ से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, तो आप अपने नेटवर्क से बाहर जा रहे हो, अपनी कंपनी से बाहर जा रहे हो, इंटरनेट पे जा रहे हो, तो जब आप बाहर जाते हो तो भी आपको फायरवॉल चेक करती है, और जब बाहर से अंदर आते हो तो भी फायरवॉल आपको चेक करती है, सेम काम करती है। तो दिस इज ऑल्सो फायरवॉल इक्वल टू, आप सोच सकते हो कि सिक्योरिटी। बट इसको कैसे क्लासिफाई करें, कैसे इसको मोर प्रिसाइसली इसको डिफाइन करें, राइट। तो होता क्या है कि कोई भी इंटरनल यूजर होता है, कोई भी इंटरनल एम्प्लॉय होता है, वो जब भी अपने लैन में बैठा होता है, तो मतलब हमने बिल्डिंग की, मान के चलो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हमने क्या किया, एक अच्छा सा सिक्योरिटी हमने डिजाइन कर दिया कि यहाँ पे मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, राइट, एसजी यहाँ बैठा हुआ, जब भी आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये क्या करेगा, चेक करेगा, जो भी आएगा इसको चेक करेगा, तभी आपको अलाउ करेगा अंदर जाने के लिए। तो ये हो गया फिजिकल सिक्योरिटी, राइट, ये हो गया कंपनी की फिजिकल सिक्योरिटी, ये आप तो चेक कर रहे हो। लेकिन मान के चलो कि ये आप हो, यू यहाँ बैठे हो लैपटॉप लेकर, राइट, आपने लैपटॉप लेके यहाँ बैठे हो, और यहाँ पे इंटरनेट की दुनिया है, जो आपकी कंपनी यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कंपनी आपकी कनेक्टेड है, और आप समहाउ राउटर स्विच के थ्रू, आप यहाँ पे मान के चलो एक स्विच है, यहाँ से आप कनेक्टेड हो। तो ये बंदा इंटरनेट पे बैठकर, मतलब आपकी कंपनी में बैठकर, यहाँ पे कहीं गूगल का सर्वर रखा हुआ है, ठीक है, ये गूगल का सर्वर है, ये इसको एक्सेस कर रहा है। अब ये आपकी कंपनी से बाहर जा रहा है, ये आपका एग्जिट गेट है। ये कौन सा एग्जिट गेट है, वर्चुअल एग्जिट गेट है। अब ये वर्चुअल एग्जिट गेट से क्या भेज रहा है, क्या आ रहा है, ये गार्ड को थोड़ी पता चलेगा। तो ही इज नॉट टू मच इंटेलिजेंट कि वो जाकर इसको वर्चुअली देख पाए कि क्या डेटा जा रहा है इसके थ्रू। तो ये इसके कैपेबिलिटी से बाहर है, ही कैन नॉट डू चेक्स फॉर दैट। तो फिर उसके लिए क्या करें हम, उसके लिए हमारे पास क्या है,
तो हमने कुछ ऐसा सिक्योरिटी गार्ड खोजा जिसका हमने नाम दिया फायरवॉल। सो हमने बोला कि लेट्स गो विद द फायरवॉल। सो फायरवॉल अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, फायर मीन्स आग, वॉल मीन्स की एक जलती हुई धधकती हुई, इसको डेफिनेशन खोजोगे तो एग्जैक्टली यही मिलेगा कि जलती हुई धधकती हुई आग, कि अगर उस आग में अगर आप सही से अपने आप को प्रोटेक्ट करके डालोगे तो बच जाओगे, नहीं अगर थोड़ा भी आपका प्रोटेक्शन गलत है तो यू विल बी किल्ड बाय द फायरवॉल। तो जो आग है ना, बिल्कुल 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 तेज तरार आग है, उसमें आप जल जाओगे। एंड दिस इज एक्चुअली फायरवॉल लाइक मीनिंग इन हिंदी, ठेठ भाषा में अगर बात करें तो इसको यही बोलते हैं। सो आपको क्या होता है कि अगर आप इसको क्रॉस करने की कोशिश करोगे एंड यू डोंट हैव लाइक ऑथराइजेशन, यू डोंट हैव ऑथराइजेशन, तो ये आग में आप झुलस के यहीं पे किल हो जाओगे, आपको फायरवॉल किल कर देगा। लेकिन अगर आपके पास प्रोटेक्शन है, आपके पास ऑथराइजेशन है, तो आप इसको क्रॉस करके देन आप जा सकते हो। इसलिए हर कंपनियों के अंदर या हर लोकेशन, आज कोई ऐसी कंपनी नहीं है वर्ल्ड में जिसके पास फायरवॉल ना लगी हो, ठीक है, आपको फायरवॉल चाहिए ही चाहिए, विदाउट फायरवॉल यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो होगा क्या कि बेसिकली आपको फायरवॉल लगाना ही पड़ेगा। तो फायरवॉल करती क्या है कि अब आपका फिजिकल सिक्योरिटी जहां फेल हो गया, वहां पे आपकी आती है वर्चुअल सिक्योरिटी। तो जैसे ही आपका कोई भी डेटा इंटरनेट पे जाने की कोशिश करता है, तो वो डेटा आपको फायरवॉल से क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब ये यूजर अगर इंटरनेट पे बात कर रहा है, गूगल भी खोल रहा है, तो इसके हर एक एक्टिविटी को फायरवॉल मॉनिटर करेगी। अगर फायरवॉल को लगता है कि यूजर को मुझे गूगल पे एक्सेस करने देना है, तो इसको अलाउ करेगा। अगर नहीं लगेगा कि नहीं, ही इज नॉट गुड यूजर, ही इज नॉट ट्राइंग टू एक्सेस गुड वेबसाइट, तो इसको सिंपली यहाँ पे डिनाई कर देगा। मतलब डिनाई करना मतलब किल कर देगा, मतलब आग में उसको जला देगा। सिंपल सा अगर समझने की कोशिश करो तो यही मतलब होता है, मतलब उसको नहीं जाने देगा। तो हमारी जो यहाँ फिजिकल सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम था और वर्चुअल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, वो दोनों ही हमारा सोल्व हो गया। क्यों सोल्व हो गया? क्योंकि हमने एक ऐसी डिवाइस लाई जो बेसिकली वही काम कर रही थी जो मेरा फिजिकल सिक्योरिटी कर रहा था। बस ओनली डिफरेंस इज कि ये जो सिक्योरिटी है किसके लिए है, ये हमारे हम लोगों के लिए थी, और ये जो सिक्योरिटी है ये हमारी डिवाइसेस के लिए है। कौन सी डिवाइसेस के लिए? नेटवर्क डिवाइसेस के लिए। सो नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती है? नेटवर्किंग डिवाइसेस में हमारे पास देखो, हमारा फोन हो सकता है, हमारे पास लैपटॉप हो सकता है, हमारा प्रिंटर हो सकता है, हमारे सर्वर हो सकते हैं, हमारे राउटर हो सकते हैं, हमारे स्विच हो सकते हैं, हमारे WLC हो सकते हैं, हमारे AP हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। मैंने जितना आया था मैंने बोल दिया, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए उन पे कोई अनऑथराइज एक्सेस ना ले ले, किसी तरह का उस पर कोई मालवेयर अटैक ना कर दे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, तो आपको अपना एक फायरवॉल लगाना पड़ता है। अब बताओ कि किसी को इस फायरवॉल के डेफिनेशन में, कॉन्सेप्ट में अनक्लैरिटी है, तो आई विल गिव सम मोर एग्जांपल्स। यह सबको समझ आ गया? मुझे आप लोग बताइए कि फायरवॉल क्या होती है, आप लोग इसको डिफाइन कर पाओगे अपने वर्ड्स में कि नहीं कर पाओगे? एनीवन? कुछ को ऐसा लगता है कि मुझे नहीं समझ में आया? आ गया सर, समझ में आया। आ गया? क्लियर है? बहुत इजी है, जी सर, राइट? क्लियर, जी सर। थैंक यू। किसी को लगे कि अगर नहीं समझ में आया, जस्ट लेट मी नो, ठीक है? आई एम हियर टू हेल्प यू, ऑलराइट? सो अब हम बात करते हैं कि हमें ये समझ आया कि फायरवॉल की जरूरत क्यों पड़ती है, राइट? अब यहीं पे पूरी फायरवॉल की कहानी है कि अब ये जो मैं बताया ना कि इसको अलाउ करना, ब्लॉक करना, यही सब कहानी आपको समझना है। किस सिनारियो में आपको अलाउ करना है, किस सिनारियो में आपको ब्लॉक करना है, कैसे हमें अलाउ करना है, कैसे हमें ब्लॉक करना है, यहीं पे पूरा आपका फायरवॉल का खेल खत्म हो जाएगा। अब इस अलाउ एंड ब्लॉक के अंदर अब आपको आईपी पैकेट्स के ना हेडर को समझने पड़ते हैं कि आपके जब एक आईपी पैकेट्स होता है तो उस आईपी पैकेट्स के अंदर ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मैं आपको लिखता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है। आपके अंदर सोर्स मैक होता है, राइट? डेस्टिनेशन मैक होता है, सोर्स आईपी होता है, डेस्टिनेशन आईपी होता है, राइट? सोर्स पोर्ट होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, राइट? आपके पास एप्लीकेशन होता है, ऐप बोलते हैं। इसके बाद आपके इसके अंदर कुछ और भी एडवांस होती हैं, कुछ और एडवांस होती हैं। लास्ट में आपका फाइनली, अभी बताऊंगा आगे चल के सब कुछ क्या क्या होता है एक एक करके। फिर लास्ट में आपका कंटेंट होता है, इसको आप डेटा बोलते हो या इसको पेलोड बोलते हो। तो होता क्या है कि जब ये पैकेट्स आता है ना, तो इसको जैसे लेयर 2 एड्रेस बोलते हैं, इसको हम लेयर 3 एड्रेस बोलते हैं, इसको हम लेयर 4 एड्रेस बोलते हैं, इसको हम लेयर 7 एड्रेस बोलते हैं, और ये सब हमारा एडवांस में आ जाती हैं जो मैं आगे बताऊंगा, और ये कंटेंट पेलोड हो जाता है। तो देखो लेयर 2 लेयर 3 ये सारे OSI के पार्ट हैं। OSI आप पढ़े होगे, तो आपके पास फिजिकल लेयर 1 पे क्या होता है, फिजिकल लेयर होता है। लेयर 2 पे क्या होता है, डेटा लिंक लेयर होता है जहाँ मैक एड्रेस होता है। लेयर 3 पे आपका क्या होता है, नेटवर्क लेयर होता है। लेयर 4 पे क्या होता है आपका, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। लेयर 7 पे क्या होता है आपका, एप्लीकेशन लेयर होता है। ये होता है ना OSI का सारा। तो OSI के जो जितने भी हमारे मॉडल्स हैं, उस पे जितने लेयर पे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, उन सबको
जो मेरा फायरवॉल है उसको अंडरस्टैंड करता है, और उन सबको अंडरस्टैंड करने के बाद उन सब पे कुछ न कुछ एक्शन ले सकता है, अगर आप उसको बोलते हो एक्शन लेने के लिए तो। सो दिस इज हाउ फायरवॉल इज गोइंग टू हेल्प यू। सो मैं एक एक करके आगे बताऊंगा कि कैसे बेस्ड ऑन द मैक, बेस्ड ऑन द आईपी, बेस्ड ऑन द पोर्ट्स, बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल्स, बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन द कंटेंट इवन, और यूजर आईडी आपका, बहुत सारे एडवांस फीचर, यूआरएल, उन सब के बेसिस पे मशीन आईडी, उन सब के बेसिस पे कैसे ये कर सकता है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को आगे चल के एक एक करके अभी दिखाऊंगा, राइट। सो ये हो गई फायरवॉल की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि जब भी आप फायरवॉल की बात करते हो, राइट, सो हमारे पास फॉलोअर्ट, अभी मैं थोड़ा और भी आप लोग को डिफाइन करूंगा कि हमारा लेगेसी फायरवॉल, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस फायरवॉल क्या होती है, बट उससे पहले मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ कि हमारी फायरवॉल दिखती कैसे है। तो अगर जब फॉलोअर्ट फायरवॉल की आप बात करते हो, तो अगर मैं जाके गूगल पे जस्ट सर्च करता हूँ, ठीक है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा फॉलोअर्ट फायरवॉल दिखती कैसे, बस थोड़ा सा आप लोग देख लो कि कैसा फॉलोअर्ट फायरवॉल दिखता है, कैसा आप लोग को। तो देखो ये सब पॉलो ऑल्टो फायरवॉल्स हैं, रियल पॉलो ऑल्टो फायरवॉल्स। ये देखो स्मॉल हैं, कुछ हाई एंड के हैं, 7080, 7050, 5020, ये आपका 220 हो सकता है। 4 फंडे सीरीज के फायरवॉल आते हैं, तो बहुत सारे मॉडल अवेलेबल है, मैं एक एक करके भी दिखाता हूँ। 820, 3260 फायरवॉल्स हैं। तो कुछ इस तरीके की फायरवॉल दिखती है। अब मैं एक एक करके ना इसके पूरे पोर्ट्स, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ मैं बताऊंगा आगे, कैसे इसको क्या मतलब होता है जब मैं कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा डे 1 पे, जब हम एक लैब करेंगे। कौन सी लैब बताता हूँ आप लोग को, हमारे पास जो लैब है, जब हम ये लैब करेंगे तो आप लोग को, मैं एक बार पासवर्ड दोबारा डाल देता हूँ। तो जैसे ये तो एडवांस लैब है, अभी हम इसके पास तो जाने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे हम डे 0 लैब करते हैं, राइट, सो डे 0 लैब के अंदर जो हमारा है, राइट, सो बेसिकली क्या हम करेंगे कि डे 0 लैब के अंदर हम बेसिकली हम बात करेंगे कि कैसे इस फायरवॉल को हम बिल्कुल स्क्रैच से कॉन्फ़िगर करेंगे, जो प्रॉब्ली हम अपकमिंग क्लासेस में करेंगे। तो एक एक करके हम समझेंगे कि कैसे हम इस फायरवॉल को जीरो स्क्रैच से कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे पीसी पे आईपी है, कैसे हम इसका सीएलआई एक्सेस लेंगे, कैसे हम जीओआई एक्सेस लेंगे। देन आई विल एक्सप्लेन कि ये सारे पोर्ट्स का मतलब क्या होता है। ये जो पोर्ट्स डिफरेंट में दिख रहे हैं ना सारे फायरवॉल्स के, मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक एक पोर्ट का मतलब क्या होता है फायरवॉल के, ताकि अगर कभी इन केस आपको अगर फिजिकली फायरवॉल पे काम करने को मिल गया तो आप यहाँ पे ये नहीं कंफ्यूज हो कि अरे ये तो सर ने बताया ही नहीं था मुझे, मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग है कि मैनेजमेंट पोर्ट हम क्यों यूज करते हैं, एचए पोर्ट क्यों यूज करते हैं, ये कंसोल पोर्ट क्यों होता है, यूएसबी पोर्ट क्यों होता है, ये सब एलईडी का मतलब क्या होता है, ये सब फैन किस लगे होते हैं, ये सब पोर्ट का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं एक एक पोर्ट का, ऑल्दो वी आर डूइंग द वर्चुअली, हमारे पास वैसा तो साधन नहीं है कि मैं कैमरे पे आपको दिखाऊं फिजिकल फायरवॉल जो मेरे पास रखा हुआ है, बट सेम चीज दिखेगा वहां भी जो मैं आपको फिजिकली दिखाऊंगा, और यहाँ पे जो दिख रहा है एग्जैक्टली वही सेम फोटोग्राफ है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई विल मेक श्योर कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, कभी भी अगर आपको फायरवॉल मिलता है तो यू इजिली नो कि हर एक पोर्ट का मतलब क्या है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। सर हाँ बताइए। सर वो जो यूएसबी केबल है हाँ 5250 में, वो जो कंसोल केबल है, जो सी टाइप वाला है, वो नहीं है। हाँ, अब डिपेंड करता है कि कुछ कुछ मॉडल में इन्होंने डाल रखा है, कुछ कुछ में इन्होंने नहीं डाला, यूएसबी केबल डाल के छोड़ दिया होगा, राइट, आप बोल रहे हो यही जी ना। सर। जी हाँ, सर। तो कई सारे फायरवॉल में आप इन्होंने यूएसबी, ये बिगनिंग का फायरवॉल 220 में, 820 में सब आता है, बट उस एडवांस फायरवॉल में इन्होंने अब बंद कर दिया हुआ है, जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग हो रही, पहले आता था सबके अंदर आता था। तभी रिसेंटली आपने कब चेक किया अनिकेत? कल सर। कल चेक किया, नहीं है, गुड, चलो। बाकी सारे पोर्ट्स आपको मिलेंगे, थोड़ा बड़ा फायर लोग ज्यादा पोर्ट मिलेंगे, छोटा फायर लोग कम पोर्ट मिलेंगे, लेकिन पोर्ट तो सारे ही मिलेंगे, आप लोग को टेंशन लेने की उसमें जरूरत नहीं है, पोर्ट तो सारे मिलेंगे, सबका मतलब मैं बताऊंगा एक एक करके इन बेसिकली फ्यूचर्स सर वो कैसे। 5250 रेंज का था, और उसमें ये कंसोल केबल सी टाइप वाला नहीं था सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होता है, कई सारे मॉडल हैं जहाँ पे हमारे पास पोर्ट नहीं आते हैं। सो अब मैं बात करता हूँ कि कुछ हमारे पास फायरवॉल के मॉडल्स हैं, ठीक है, जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, थोड़ा पता होना चाहिए कि फायरवॉल के मॉडल्स क्या क्या होते हैं। तो देखो हमारे पास बहुत सारे ये सारे फिजिकल फायरवॉल्स हैं, फिजिकल फायरवॉल्स हैं, तो जैसे हमारे पास PA220 फायरवॉल है, PA220R फायरवॉल है। अब हर एक फायरवॉल का ना कुछ अपना अपना मतलब
मतलब एक तरह से फीचर्स होता है कि अगर मैं PA220 की बात करता हूँ तो ये PA220 फायरवॉल जो है ना बहुत ही बेसिक फायरवॉल है। इट्स लाइक बेबी फायरवॉल। जो पहला फायरवॉल है पॉलो अल्टो का PA220 ही है। इसके ऊपर के जितने भी फायरवॉल हैं ये सारे हाई एंड के फायरवॉल हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, PA820 फायरवॉल है। इसके बीच में एक 400 का भी फायरवॉल आता है जो मैं अभी स्लाइड में नहीं डाला हूँ, कभी डाल दूंगा आगे। फिर आपका 3200 भी आता है। फिर आपका इसमें 5000 सीरीज फायरवॉल आती है। फिर आपको यहाँ पे 7000 सीरीज फायरवॉल आती है। तो ये सब फायरवॉल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट आपके, जो आपको अलग अलग सेगमेंट के लिए डिजाइन की गई है, मैन्युफैक्चर की गई हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ अलग अलग सेगमेंट्स के लिए? तो मान के चलो कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि मुझे PA220 खरीदना चाहिए, अब PA800 खरीदना चाहिए, 3200 खरीदना चाहिए? आप बीइंग इंजीनियर कैसे इसको डिजाइन करोगे, कैसे क्लासिफाई करोगे? तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके नीड के ऊपर। तो ये आपके जो कंपनी का आर्किटेक्ट होते हैं, जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, दे बेसिकली रिकमेंड। क्यों रिकमेंड करते हैं? वो आपके बिजनेस को समझते हैं कि जैसे मतलब हम कंपनी में, किसी कंपनी के अंदर मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ, राइट? सो मैं अपनी कंपनी के बिजनेस को समझूंगा कि मेरी कंपनी अगर सपोज करो कि कोई एक नया ब्रांच खोल रही है, सो मैं उनसे पूछूंगा कि उस ब्रांच में कितने यूजर बैठेंगे। सिंपल सी बात है, कितने यूजर बैठेंगे। पहली तो यही रिक्वायरमेंट है, किस टाइप की एप्लीकेशन एक्सेस करेंगे। दूसरी क्वेश्चन मेरा ये होगा, किस टाइप के एप्लीकेशन एक्सेस करेंगे, कितने यूजर बैठेंगे, और कहाँ कहाँ से, मतलब कौन कौन सा लोकेशन पे रिमोटली है, डेटा सेंटर में है, किस टाइप के सर्किट्स हैं। वो सारा कुछ मैं एनालाइज करने के बाद फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरे लिए फायरवॉल कौन सही रहेगा। क्योंकि हर चीज का ना एक लिमिटेशंस होता है, हार्डवेयर लिमिटेशंस होती हैं। ऐसा नहीं कि आप आपके पास, अगर आप बस स्टॉप पे खड़े हो और वहां पे आपके पास 100 पैसेंजर्स वेटिंग है और आप एक 4 सीटर कार भेज दो, तो क्या वो कैरी कर पाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल। 4 सीटर कार आपको मतलब मैक्सिमम 4 पीपल को ही कैरी कर सकता है, इंक्लूडिंग ड्राइवर। 5 लोग कैरी कर सकता है, लेकिन 100 पीपल कैरी कर रहा तो कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो उसके लिए आपको फिर या तो मल्टीपल आपको कार्स खरीदनी पड़ेगी, या तो फिर आपको 100 सीटर कोई व्हीकल भेजना पड़ेगा, या फिर मतलब आपको 2-3 बसेस भेजनी पड़ेंगी, देन दे आर गोइंग टू कैरी। तो टोटली कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से। अगर आपको 5 पीपल ही वहां पे, 4 पीपल ही हैं, तो फिर आप क्यों आप बस भेजोगे, राइट? कोई आप दूसरी बड़ी व्हीकल क्यों भेजोगे? आप छोटी व्हीकल भेजो, क्योंकि आपका कॉस्ट कम लगेगा, आपका फ्यूल कम लगेगा, सब कुछ। तो दैट इज द टोटली कि आपकी कैसे सिनारियो है, कैसा डिमांड है, उसी हिसाब से आपकी सप्लाई होगी। तब मैं PA220 की बात करता हूँ। सो इट्स अ बेसिक फायरवॉल, इट्स अ बेसिक फायरवॉल। सो इसके अंदर आप मैक्सिमम थ्रूपुट्स और मैक्सिमम आपकी जो आईपी सेक, जब इस पे टनल बनाते हो, सो मैं डिस्कस करूंगा अब आगे चल के आईपी सेक टनल क्या होता है, कैसे बनता है। इसमें आपको मैक्सिमम जो स्पीड मिल सकता है वो 100 MPS मिल सकता है। और इसकी अगर टोटल थ्रूपुट की बात करो तो आपको 500। तो अगर सपोज करो कि कंपनी में आपकी थ्रूपुट की जरूरत है 600, तो ये फायरवॉल तो आपके लिए यूजलेस हो गया, राइट? अगर आपको सिक्योरिटी जोन्स, देखो इसमें 15 सिर्फ बन सकती हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलिसी 250 बन सकती है। अगर आपके पास 1000 एप्लीकेशन को एक्सेस करना है और आपको 1000 पॉलिसी बनाना है, तो ये आपके लिए यूजलेस हो गया। आप इसमें कैसे अकोमोडेट कर पाओगे? दिस फायरवॉल इज डिजाइन फॉर जस्ट फॉर द स्मॉल ब्रांच, जहाँ पे 5, 10, 20, 30 यूजर हो, 50 यूजर हो, उनके लिए ठीक है। बट अगर उनसे ज्यादा यूजर्स हैं, राइट, उनके उनसे ज्यादा एप्लीकेशंस आपको एक्सेस करना है, सो दिस इज नॉट रिकमेंडेड, दिस फायरवॉल इज नॉट रिकमेंडेड। सो दिस इज जस्ट फॉर द स्मॉल लोकेशन, ब्रांच लोकेशन, लाइक दैट यू कैन जस्ट यूज दिस फायरवॉल्स। लेकिन अगर जैसे जैसे आप अगर हाई एंड पे जाओगे, तो आपकी स्पीड्स, आपके सेशंस, आपके वर्चुअल राउटर, आपके पॉलिसीज, आपके VPN के जो बैंडविड्थ है, वो सारा ही इंक्रीज होते जाएगा। क्योंकि आप बड़ी फायरवॉल ले रहे हो, तो इसको आप मिड ऑफिस रेंज में लगा सकते हो। यू कैन पुट इन द एनी मीडियम ऑफिस रेंज, या कोई भी लिटिल बिट लार्ज हम बोल सकते हैं, वहां भी हम लगा सकते हैं। बट इट्स लाइक मोर देन कैपेबल ऑफ 220। अगर इससे ऊपर जाओगे तो देखो इसके अंदर आपको और भी फीचर आपके ऐड आ गए। इसके अंदर आप ग्लोबल प्रोटेक्ट भी ऐड कर सकते हो, इसमें नहीं था, जिसको हम SSL VPN बोलते हैं, राइट? तो आप यहाँ पे ग्लोबल प्रोटेक्ट भी यूज कर सकते हो। वर्चुअल राउटर आपके नंबर बढ़ गए। आपकी पॉलिसी 2500 हो गई। यहाँ पे स्पीड देखो 5 Gbps तक थ्रूपुट ये सपोर्ट करता है। आपकी जो टनल होगी 2.5 Gbps तक सपोर्ट करती है, राइट? सेशंस आप देख सकते हो कितने सेशंस हैं, ऑलमोस्ट 1 मिलियन सेशंस हैं इसमें, राइट? सो ये ग्रेजुअली आप जैसे जैसे हायर मॉडल पर जाओगे, इसको हम
डेटा सेंटर में यूज कर सकते हैं, अगर स्मॉल डेटा सेंटर है आपके पास, या कोई बहुत लार्जर रीजनल ऑफिस है वहां पर हम यूज कर सकते हैं, बहुत बिग रीजनल ऑफिस है वहां यूज कर सकते हैं, स्मॉल डेटा सेंटर में यूज कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो पूरा डेटा सेंटर सीरीज की फायरवॉल्स हैं 7000 एंड 5000, दे आर द सुपर पावरफुल फायरवॉल्स, जिसके अंदर देखो 64 जीपीएस की बात कर रहे हैं, 24 जीपीएस के आपके वीपीएन मिलेगा, तो दे आर लाइक सुपर पावरफुल। अगर इस पर बात करो तो ये सब प्योर डेटा सेंटर बेस्ड फायरवॉल्स हैं, जहां पे अगर डेटा सेंटर बेस अगर आपको यूजर्स करने हैं तो आप यू कैन यूज दिस फायरवॉल फ्रॉम देयर। ठीक है, तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के डिफरेंट डिफरेंट फायरवॉल्स हैं, और उसको हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे यूज कर सकते हैं। दीज आर द ऑल फिजिकल फायरवॉल्स। अगर मैं अब लैब की बात करता हूँ, तो लैब अगर हम जब एक्सेस करते हैं तो लैब के अंदर हमारा क्या है कि हमारे लैब में बहुत सारे लैब्स बने हैं यहाँ पे देखो। सो हमारे लैब के अंदर तो फिजिकल फायरवॉल है नहीं, क्योंकि हम इसके अंदर फिजिकल फायरवॉल कैसे लगा सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। सो वी जस्ट इंस्टॉल द वर्चुअल फायरवॉल्स। सो दीज आर द वर्चुअल फायरवॉल्स। जितने भी लैब, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं लैब में जाता हूँ तो मेरे पास अगर फायरवॉल की बात करता हूँ पोलो ऑल्टो की, तो इसके अंदर मेरा देखो 3 इमेज पड़ी हुई है, राइट। इस लाइक 9.0 iOS का पड़ा हुआ है, 7.1.0 का, 10.0.3 का पड़ा हुआ है। सो दिस इज द लेटेस्ट वन, एडवांस वन। ये मेरी फायरवॉल है, ये वर्चुअल फायरवॉल है। तो इसके अंदर भी अगर आपको हाई थ्रूपुट चाहिए, हाई डेटा चाहिए आपको, तो आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ता है आपको पोलो ऑटो फायरवॉल से। तो जैसे ही आप लाइसेंस परचेज करते हो तो फिर आपको आपको उस लेवल की फीचर आपको मिलने लगते हैं, राइट। बट वीएम सीरीज इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन द फिजिकल सीरीज इन टर्म ऑफ द मतलब मैन्युफैक्चरिंग। आपको कुछ काम करने में कुछ भी पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि मैं जैसे फिजिकल पे काम कर रहा हूँ वैसे ही मैं वर्चुअल पे ही काम कर रहा हूँ। देयर इज नो सिंगल लाइन डिफरेंस इज गोइंग टू बी हैपन। ओनली कुछ आपके जो स्पीड्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, वो आपको क्लोजली आपके वेंडर से मतलब पोलो ऑल्टो से बात करके आपको उसको लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी। तो वंस वी स्टार्ट द सेशन कि आप लोगों को सबको लैब एक्सेस मिलेगा। लैब एक्सेस जैसे ये आपको यूआरएल मिल गया, राइट। इस यूआरएल को आप लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं अगर गया तो आपको इंटरनेट चाहिए मैं दूसरा यूआरएल खोलता हूँ ताकि आप लोग को सही से दिखे। जैसे मैं ये दूसरा पोर्ट नंबर जैसे मैंने खोला, तो देखो जैसे खोलोगे आप लोग तो इस तरीके से आपका पेज खुल जाएगा, एंड इट इज एब्सोल्युटली वर्केबल 24/7। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी लैब कर सकते हो। जैसे ही हम सेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा स्टार्ट हो ही गया, जस्ट वी आर डूइंग द बेसिक्स, तो हम डेली दो दो चार क्लास हमारी बेसिक्स में ही जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत कुछ समझना है। जैसे आज हमारा एक क्लास हो गया, पिछले बार हमें किया, अभी हम अगले भी सेशन करेंगे। तो ये सब अभी बेसिक्स जाएगा, नेक्स्ट वीक से हम फुल फ्लैश आएंगे कि हमारा मॉड्यूल कैसे चलेगा। बट बेसिक समझना बहुत जरूरी है आप लोग को। तो आप लोग करना है कि जैसे ही आप लोग को लैब एक्सेस मिलेगा तो आपकी यूआरएल को अपने ब्राउजर में खोलना है। खोलने के बाद आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना है, दैट्स इट। सबको अपना यूजर, अभी मैं एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ, बट आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा सबका सेपरेट सेपरेट। तो आपको इस पे लॉगिन करोगे तो आपको किसी तरीके से आपको इंटरफेस मिल जाएगा, और यहाँ पे जाकर आप अपना, जैसे देखो डिफरेंट डिफरेंट लोग, जैसे पिछले बैच का चिराग, कमरजीत, नीलेश, सबका है अपना अपना लैब। यहाँ पे कुछ कुछ लैब मैंने बना रखी है, तो वो सारी चीजें। तो यू कैन डिजाइन योर लैब्स। आप अपनी लैब के अंदर जाकर अपनी अपने हिसाब से लैब बना सकते हो, या जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड लैब्स हैं उसको भी आप यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो इट्स अप टू यू। ये आपके लिए लैब हमेशा एक्सेसिबल होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि एक्सेसिबल नहीं होगा। सो थ्रू आउट द जर्नी आपको रात में मन कर रहा है रात में करो। कई लोग की क्या होती है कि मॉर्निंग शिफ्ट होती है, कई लोग की नाइट शिफ्ट होती है, तो कई लोग ऑफिस से करना चाहते हैं, उनके पास टाइम होता है, कई बार फ्री रहते हैं, या कई लोग दिन में करना चाहते हैं, तो यू कैन डू एनी टाइम, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है। सो आई थिंक जो नेक्स्ट सेशन हम करेंगे उसमें मैं बात करूंगा आप लोग से स्टेटफुल एंड स्टेट लेस फायरवॉल के बारे में, प्रॉक्सी एंड फायरवॉल के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे कि दोनों चीजें क्या होती हैं। मीनवाइल मैं आप लोगों को थोड़ा ओपन विंडो करता हूं कि आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन जस्ट आस्क मी। सो मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों के दिमाग में क्या क्वेश्चन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो यू वांट टू आस्क मी, तो थोड़ा मैं उसको आप लोग का भी गाइड कर दूं, क्योंकि वी आर गोइंग स्लोली। हम शुरू में बहुत स्लो जाते हैं, क्योंकि हम ये ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत ज्यादा फीड एक बार कर देंगे शुरू के अंदर, सो दैट इज नॉट गोइंग टू डाइजेस्टेबल। तो हम बिट एंड बाइट पीसेस में धीरे धीरे जाते रहते हैं। तो आप लोग बताओ कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो, सो आई विल ट्राई टू यू नो गेट देम आंसर। I have a very different kind of a question, if I may. हाँ Pankaj. बताइए बताइए सर। मुझे जब मैं फायरवॉल्स के बारे में पढ़ रहा था
तो मुझे ये दिखा कहीं कि आई एम नॉट श्योर कि देयर आर अबाउट 65,535 ports in a computer. Is that true? How much? 65,000. 65,000 कोर्स इन द कंप्यूटर. इट कुड बी ट्रू बिकॉज द कंप्यूटर के अंदर, मतलब एक फायरवॉल के अंदर ही कम से कम 50-60 कोर्सेज होंगे इस Palo Alto के अंदर ही, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो ऐसे पता नहीं कितने वेंडर्स हैं, मेनी वेंडर्स अवेलेबल. सो सबका अपना अपना प्रोडक्ट्स है, मोर देन 1,000-2,000 वेंडर्स होंगे, तो उनके अलग अलग अपने 60-70 सिस्को की आई थिंक हजारों में सर्टिफिकेशन होंगे, कोर्सेज होंगे कई हजारों में. सो इट कुड बी ट्रू सर, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, इट कुड बी ट्रू. Acha. Because I'm not very sure. One computer having 65,500, and they say that it was written there, as I recall. Correct me if I'm. And anybody, not only Pankaj sir, but anyone, that every port has a specific purpose. Like port 23 or 13 hai, which is for 23. So there is a well-known, there are multiple ports. Some are the well-known ports, some are the like random ports. So ports are like, if you go in the Google, so 23 for the port, the telnet port, some are the SSH ports. So network ports details. So you will see here. So see. This is just for the 50, but this is not complete list. There's 1,000 something ports are available here. Yes. I think if you write in Google how many ports are there in a computer, that will give us the entire See, number see, this is the port. These are the ports. So these are the port. Let me just scroll down. It's more than 1,000. Let me show you. This is the well-known ports. 1,023. See, so there are 1,023 ports are well-known ports, right? So they are the ports, right? So the ports you are referring, that was a 23 number ports. Right, for telnet. So Intranet, 23, I not, guess. yeah. This is for the, telnet port. You can see here, telnet port. 13 port is a dynamic protocol ports, right? So every ports we having definition here. And apart from that, these are the well-known port 1023 ports, right? And apart from that, we also having a very large number of the ports. It's like you can see registered port are, yeah. So too many ports are available, and some are like used, some are some can be used, some are for reserved for the specific purpose. Some are going to be generated by random by the machine itself. So a lot of things is going to be, and based on these ports, we can prepare the firewall policies and we can allow in block. What was interesting for me was that I had seen this written somewhere that 65,535 ports in every system. Yes. See, computer or something. Just wanted to clarify that. Yes, it's completely true. It's not something. See, this is the port range, 64734, right? And the number you are saying, they are not written here. Dynamic ports number, they're not written. This is a report. See here, these are the extended port number 65535. These all ports are going to use by the every machine. So these are the ports. Basically, even the firewall use, even the any network devices use these kind of ports for the communication. Okay. Good question. Any other question, guys? Anything coming from your mind, you can ask, because I have done for today, because I just want to make the small session initially, then we go for the larger session. Don't worry, okay? But slowly, gradually, we'll grow, understand every technology. But आप लोग ज़्यादा question पूछो, so I'll help you. आप लोग को ज़्यादा time देना है मुझे शुरू में. Be comfortable, ask question anything. अगर दिमाग में कुछ भी चल रहा तो. सर, हाँ जी, बताइए अनिकेत. तो आपने शुरू में जो बताया था वो जो 2 सर्टिफिकेशंस है, PCNSA और PCNSE, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? PCNSA में क्या कंटेंट आती है? ये PCNSA में बहुत ही बेसिक है. मतलब आपको बेसिक फायरवॉल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, एडवांस आपको पॉलिसी के बारे में नहीं पढ़ने को मिलेगा, डिक्रिप्शन वगैरह के बारे में नहीं पढ़ने को, HA के बारे में नहीं पढ़ने को मिलेगा. आपको बेसिक इंटरफेस टाइप की जानकारी हो जाएगी, थोड़ी पॉलिसी की जानकारी, थोड़ी नेट की जानकारी हो जाएगी, और आपको कैसे फायरवॉल ऑपरेट करना है, मॉनिटर करना, उसके बारे में नॉलेज हो जाएगा. लेकिन अगर बात करते हो डेप्थ नॉलेज ऑफ द पैकेट फ्लो, SSL डिक्रिप्शन, साइड टू साइड VPN, आपको ग्लोबल प्रोटेक्ट, ये सब उसमें नहीं मिलेगा आपको. तो यही आपको PCNSE में करना होता है. तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि PCNSE आप करो. ठीक है अनिकेत? Palo Alto सर ये प्रोवाइड करती है सर्टिफिकेट? हाँ, Palo आपको एग्जाम देना पड़ता है.
जैसे आप जी सिस्को सर। का एग्जाम सीसीएनए देते हो ना आप, वैसे ही पोलो अल्टो का एग्जाम देना पड़ता है आपको, बिना जैसे एग्जाम कि दिए। हाँ। वेंडर्स के लिए काम करते हैं तो सर वो सर्टिफिकेशंस करवाती है, जैसे हर लाइक 3 मंथ्स में उनको सर्टिफिकेशंस की जरूरत होती है, तो वो हम्म। उनका कूपन देते हैं सर, लाइक कि पीसीएनएसए का करने का, पीसीएनएससी करने का। अगर आपको कूपन मिल रहा है तो आंख बंद करके कोई भी मिल रहा है कर लो, उसमें कौन सा आपका पैसा जा रहा है, राइट? तो यस सर। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, दे हैविंग अ टाई अप, वो कूपन देती हैं, अपने एम्प्लॉय पे इन्वेस्ट करती हैं। बट आजकल अगर मेरे से ऑनेस्टली पूछो तो कंपनियां ना हर जगह कॉस्ट सेविंग होती है, इतना कोई खर्चा नहीं करता है। देखो कोई चीज फ्री नहीं होती, देयर इज नो लंच फ्री, ओके? आप लोग एक कहावत है कि मतलब कि कुछ भी है तो फ्री नहीं होता है, उसके पीछे कॉस्ट होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से वो रहता है। तो आजकल कंपनियां बहुत कम रेकमेंड करती हैं अनलेस अनटिल आप टैग में हो। अगर पोलो ऑटो टैग में हो तो उनका खुद का प्रोडक्ट है, उनका कौन सा पैसा लग रहा है, ठीक है, जाओ एग्जाम दो। लेकिन अगर आप वेंडर हो, राइट, सो दे गिव यू लिमिटेड कूपन्स, और उसके बदले वो आपसे बिजनेस लेंगे, तभी आपको लिमिटेड कूपन देंगे। तो अगर यस 5 कूपन देती है 50 इंजीनियर, तो सबको थोड़ी मिल जाएगा, तो वो भी मैनेजर देखेगा ना कौन मेरे लिए काम का बंदा है, कौन मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है, यस उसको सर। देगा जैसे वो। हाँ। पालो अल्टो का साइबर फोर्स का प्रोग्राम होता है ना सर, तो उसमें हर ईयर में एक सर्टिफिकेशंस करने का फ्री होता है। पॉलो ऑल्टो, हाँ एक्चुअली पॉलो ऑल्टो में हमारे पास हर तरह का प्रोग्राम है, साइबर सिक्योरिटी का है, क्लाउड सिक्योरिटी का है, तो ये सब देख साइबर रहे हो फोर्स आप, का देखो। एक अलग से साइबर फोर्स का प्रोग्राम हाँ, चलता साइबर है। साइबर फोर्स का भी होता है, राइट, साइबर फोर्स का भी होता है आपका। तो इसमें है, जैसे देखो आप हम जो बात कर रहे हैं तो कहाँ गया, देखो ये रहा। ये देखो ये कोर्स है, इसको अगर आप लर्न मोर करोगे ना तो देखो इसके अंदर जी आपको सर। मिलेगा बहुत सारी चीजें। तो आपको रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो इसके अंदर देखो आपको क्या क्या है। इसके अंदर आप पीसीएनए कनेक्शन, फायरवॉल सेटअप मैनेजमेंट, कनेक्शन जोन सिक्योरिटी, नेट पॉलिसी, प्रोडक्शन प्रोफाइल, ऐप आईडी, वाइल्ड फायर डिवाइस, बूट ड्यूटी, इतना ही चीज आपको समझना। देख रहे हो कितना छोटा टॉपिक है इसका, जी इसके सर। आगे कुछ नहीं है। लेकिन अगर पीसीएनएसए में अगर करोगे तो आपको और भी चीजें मिलेंगे। इसके अंदर आप जाओगे तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कहाँ है पीसीएनएसए का, एक मिनट कहाँ गया वो, ये रहा। तो इसको लर्न मोड पे करते हैं तो इसके अंदर आपको फिर चीज़ें थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे देखो इसमें आपको वाइल्ड फायर डिवाइस है, थ्रेट प्रिवेंशन, सारी चीज़ें आती हैं, आपको पैनोरामा भी आ जाता है, ठीक है, किसी एनएसए का पूरा इसमें डिटेल आ जाता है। तो आपको लॉग इन करके फिर आपको इसमें अगर खुद से पढ़ाई करनी है तो यहाँ से ले सकते हो, बट इट इज़ गोइंग टू कवर डेप्थ सब कुछ, आपको सब कुछ इन डेप्थ, मालवेयर, ऐप आईडी, सब कुछ कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में लैब के साथ करना पड़ता है। वहाँ पे आपको बेसिक बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, जी सर। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन गाइज, किसी के दिमाग में कुछ और चल रहा है? सर इसमें एक एसएलआर रिपोर्ट निकालते हैं ना सर? हाँ, एसएलआर रिपोर्ट निकलती है, मतलब उसमें डिपेंड करता है, उसमें बहुत सारी रिपोर्ट निकलती है, ठीक है। तो उस रिपोर्ट में आपको एसएलआर का मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो जैसे सर कि वो। किसी कंपनी में फोर्टिनेट लगा हुआ है, हाँ और हाँ मुझे बताना है कि आपके फोर्टिनेट लगने के बाद भी आपके नेटवर्क में इतने सारे ब्रीचेस हो रही है, तो उस हाँ वे में सर फोर्टिनेट के बाद हम पालो अल्टो लगाते हैं फोर्टिनेट के हाँ, से वो कनेक्ट। तो, हाँ वो सारे फीचर्स आपको, फीचर बेस आपको जो रिपोर्ट होती है ना कि आपको पता होना चाहिए, तो वो सारी चीजें टूल से निकल जाती हैं। या बीइंग इंजीनियर आपको पता है तो आपको हर एक फीचर के बारे में अच्छे डेप्थ पता है, आपको कमियां पता है फोर्टिनेट, तो आप बता सकते हो, कस्टमर कन्विंस कर सकते हो, उनको प्रूफ भी कर सकते हो पीओसी के अंदर कि आप हमारे पीओसी फायरवॉल लगा लो और ये देखो इसमें कितनी सारी चीजें आपको डिफरेंस मिल रहा है। तो Palo Alto के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं एंड इट इज रियली वेरी गुड फायरवॉल, वेरी गुड फायरवॉल। ट्रस्ट मी, और बहुत इजी है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड फायरवॉल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप सीख कस्टमर जाओगे सपोर्ट ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा नहीं है बहुत सर। अच्छे, मतलब अब पता नहीं आपके साथ ऐसा क्यों रहा, अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिस्को के बाद किसी का सपोर्ट है तो Palo Alto का ही है। हो सकता है कि अपना अपना एक्सपीरियंस है रहता है कई बार। तो अब नहीं किस सर, सेंस में आपको लगा कि अच्छा जिस नहीं है, टाइम मैं थोड़ा जिस एग्जांपल टाइम देंगे, सर मतलब लेट रिप्लाई करते हैं, क्या करते हैं वो लोग? टैक्स सपोर्ट बहुत ये हो चुका है सर। अच्छा, तो क्या लेट रिप्लाई करते हैं क्या, क्योंकि एसएलए तो होता है, उनको तो एसएलए ब्रिज तो सर नहीं कर सकते 15 हो। दिन 20 दिन, बेसिक सी बात है सर। उनके जो टेक इंजीनियर है उनको हम्म। भी ऐसी सिंपल सी नॉलेज है, 1 वीक 2 वीक वो कोर्स कराते हैं और बैठा देते हैं। ओहो हो, तो ये तो आपको फिर तो जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर उसको एस्केलेट करना चाहिए, मतलब ये तो बहुत सीरियस इशू है। मतलब हमारे साथ अगर ऐसा होता है ना तो हम तो बिल्कुल छोड़ते नहीं है। जैसे सपोज करो कि हम किसी कस्टमर को डील कर रहे हैं, अगर हमारा कोई इशू फंसा हुआ है तो इंजीनियर आया, अगर वी आर नॉट सर्टिफाइड, तुरंत एस्केलेट करते हैं उसके अकाउंट मैनेजर को, और तुरंत वो L2 L3 सब लेके आता है इंजीनियर विद इन सेम कॉल पे। हम छोड़ते नहीं है। थोड़ा सा आप लोग एस्केलेट करिएगा ना, 1 2 बार एस्केलेट करिएगा तो ये सारी चीजें लाइन पर आ जाएंगे, बिल्कुल मतलब ढीला नहीं पड़ना है।
क्योंकि हमें लगता है कि मतलब सिस्को के बाद एस्केलेशन का जो कोई है वेंडर तो पालो अल्टो ही है तो नाउ सर फोर्टिनेट बेटर है सर। हाँ, फोर्टिनेट फोर्टिनेट बहुत अच्छा है, फोर्टिनेट बहुत अच्छा है, चेक पॉइंट भी अच्छा है, दोनों ही तीनों फायरवॉल बहुत अच्छे हैं, तो कोई भी आप कर लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही सर। हाँ ओके, और कोई क्वेश्चन कैसे दिमाग में? यस सर। हेलो बताइए संजय जी, बताइए बताइए। सर, ये फॉलो अल्टो में कमांड प्रॉम्प्ट होता है क्या? यूएस से कमांड प्रॉम्प्ट जैसे कोऑर्डिनेट में होता है, बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं? प्रॉम्प्ट बना रहता है। आपकी आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हैं सर? फॉलो अल्टो में? हेलो संजय सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक सर वी कमांड लॉस्ट। प्रॉम्प्ट आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो इसको रही है, आप चैट पे दे देंगे क्या? लिख कर, चैट पे दे दीजिए लिख कर, मैं देख लेता हूँ एक बार क्या बोलना चाह रहे हैं। सर सर अभी सुन पा हाँ अभी सुन हाँ पा रहे हैं सर? हाँ बताइए, अब बताइए। सर जैसे फॉलो इसमें 14.8 में जब हम जीयूआई मोड में जाते हैं तो वहाँ पे कॉर्नर पर रहता है जिसे हम सीएमडी वहां से भी ओपन कर सकते हैं, तो क्या ऐसे पालो अल्टो में नहीं हो सकता क्या? फॉलो अल्टो में सीएमडी का अंदर से नहीं है, आपको मतलब उसको सिंपल जाकर आपको पट्टी सेशन में आपको उसके आईपी डाल के एक्सेस करना पड़ेगा, वैसा नहीं है सीएमडी का जैसे आप बोल रहे हैं, उसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है। ओके। सर हाँ जी बताइए। पालो अल्टो का एचडी वैन और जेस किलर में कौन सा बेटर है सर, और उसमें डिफरेंस क्या है सर? अब देखिए, पोलो अल्टो का एसडी वैन और जी स्केलर दो अलग अलग, एसडी वैन एक अलग सोल्यूशन है, ठीक है, जी सर। और जी स्केलर एक अलग सोल्यूशन है, दोनों अलग अलग वर्टिकल है, मतलब एक राइट जाता है तो एक लेफ्ट जाता है दोनों के बीच में मतलब इंटीग्रेशन हो सकता है, उनको हम एक साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन जी स्केलर इज अ कंप्लीट सैसी सॉल्यूशन, ठीक है, वो क्लाउड सिक्योरिटी की बात करते हैं, एसडी वैन इज अ कंप्लीट वैन सॉल्यूशन, तो ये आपस में इंटर लिंक्ड हैं, बट इन दोनों का बेसिकली मतलब एक तरीके से आप समझो तो जी स्केलर इज कम्प्लीटली फॉर द क्लाउड, कि अगर सिक्योरिटी चाहिए तो जी स्केलर यूज करो, क्लाउड सिक्योरिटी, अगर आप फायरवॉल नहीं यूज करना चाहते हो तो, अगर वैन में आपको इंटेलिजेंस चाहिए तो आप वहां पे जी स्केलर यूज करो, सिंपल सा मतलब, सॉरी एसडी वैन यूज करो, नॉट जी स्केलर, तो आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है निकेत। जी तो हम सर। बहुत सारे सैसी पे, चीज कलर पे मैं बहुत सारा डिस्कशन करते रहता हूँ, तो कभी सेपरेटली हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं, क्या इनमें डिपेंडेंसी होती है, कैसे होती है, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन लेटर स्टेज। ओके, जी सर। ऑलराइट, सो आई बिलीव वी आर गुड फॉर टुडे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, एंड विल कनेक्ट अगेन, एंड अभी जो अगला सेशन हम करेंगे तो उसमें आप लोग सब ज्वाइन करना, एंड विल डिस्कस अबाउट द स्टेटलेस एंड स्टेटफुल फायरवॉल, एंड हम समझेंगे फायरवॉल वर्सेस प्रॉक्सी सर्वर दोनों क्या होते हैं। फिर ये जब हमारा फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा, देन हम क्या करेंगे कि हम डे जीरो की कन्फिगरेशन करेंगे फायरवॉल की, कि हमारी फायरवॉल की कन्फिगरेशन डे जीरो पे होती कैसी है, बिल्कुल डे जीरो पे, कि हम बिल्कुल नया फायरवॉल आपको अगर मिल गया तो कैसे आप उसको कन्फिगर करोगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। जब हम वो सारी चीजें समझ लेंगे, देन विल गो एंड स्टार्ट विद द मॉड्यूल्स, ठीक है, तो बहुत स्लो हम जाते हैं शुरू में, मैं ज्यादा फोर्स नहीं करता हूँ, एकदम गो, एक एक घंटे का सेशन हम करेंगे ऐसे ही, और जब आप लोगों को पूरा फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, जब इसका आर्किटेक्चर फ्लो लॉजिक समझ में आ जाएगा, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएगी, तब आप लोग को इजीली चीजें समझ में आने लगेंगी और बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे बाकी चीजों को, ठीक है। सो हैव अ ग्रेट इवनिंग टू ऑल, ठीक है, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू बाय सर। बाय, टेक केयर।